हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 4 एसएसटी चैप्टर 5 साउदर्न प्लेटू के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। समय व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। The southern plateau region extends from the southern edge of the northern plains up to Kanyakumari. दक्षिणी पठारी क्षेत्र उत्तरी मैदान के दक्षिणी किनारे से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। This provides a triangular shape to the southern plateau region. यह एक त्रिकोणीय आकार से लेकर दक्षिणी पठारी क्षेत्र तक। There are mountain ranges on the eastern and western edges of the southern plateau which are called ghats. दक्षिणी पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिन्हें घाट कहा जाता है। The northwestern boundary is bounded by the Aravalli Range, whereas the northeastern boundary is bounded by the Rajmahal Hills. उत्तर पश्चिमी सीमा अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है, जबकि उत्तर पूर्वी सीमा राजमहल पहाड़ियों से घिरी हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु and Karnataka states fall in the southern plateau region. दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य आते हैं। The land in plateau region is hard and rocky. पठारी क्षेत्र की भूमि कठोर एवं पथरीली है। The Narmada River Valley divides the southern plateaus into two parts, Central Highland and Deccan Plateau. नर्मदा नदी घाटी दक्षिणी पठारों को दो भागों में विभाजित करती है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। There lies Malwa Plateau in the northwest and Chota Nagpur Plateau in the northeast of the Central Highland. उत्तर पश्चिम में मालवा का पठार और सेंट्रल हाईलैंड के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। The Malwa Plateau consists of black soil which is good for cotton and oilseed crops. मालवा पठार में काली मिट्टी है जो कपास और तिलहन फसलों के लिए अच्छी है। There are rich deposits of coal, iron and other minerals in the Chota Nagpur Plateau. छोटा नागपुर पठार में कोयला, लोहा और अन्य खनिजों के समृद्ध भंडार हैं। The Deccan Plateau lies towards south of Narmada and in front of Satpura Hills. दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में और सतपुड़ा पहाड़ियों के सामने स्थित है। The black soil that is good for cotton crop is found here. कपास की फसल के लिए अच्छी काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। The Deccan Plateau is sloped from west to east. So, the Godavari, Mahanadi, Krishna and Kaveri rivers flow from west to east and fall into the Bay of Bengal. दक्कन का पठार पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान वाला है, तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा and Tapi are two such rivers which fall into the Arabian Sea. नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। There is no ice on the hills of southern plateaus. So, the rivers flowing in this region depend on the rainwater. That is why the rivers of southern plateaus dry up in the summer. दक्षिणी पठारों की पहाड़ियों पर बर्फ नहीं है, अतः इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां वर्षा जल पर निर्भर हैं। इसीलिए दक्षिणी पठारों की नदियां ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। In rainy season, these rivers get flooded due to heavy rainfall. बरसात के मौसम में भारी वर्षा के कारण इन नदियों में बाढ़ आ जाती है। The holy river, Godavari originates from the Trimbak in Maharashtra. पवित्र नदी गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के त्रयंबक से होता है। The Kaveri is the main river of Karnataka which is called the Ganga of South. कावेरी कर्नाटक की प्रमुख नदी है जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। It originates from a place named Kurg. इसका उद्गम कुर्ग नामक स्थान से होता है। The Nagarjuna Sagar Dam has been constructed across the river Krishna. नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है।
There are many waterfalls in the Deccan Plateau, but the Jog Falls are the highest and most popular among them. दक्कन के पठार में कई झरने हैं, लेकिन जोग झरना उनमें सबसे ऊंचा और सबसे लोकप्रिय है. The rivers flowing from the west bring alluvial soil and mud with them in much quantities and deposit it on the entrance, where they meet the sea forming delta. पश्चिम से बहने वाली नदियां अपने साथ भारी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी और कीचड़ लाती हैं और इसे प्रवेश द्वार पर जमा करती हैं, जहां वे डेल्टा बनाते हुए समुद्र से मिलती हैं. The deltas are very fertile. डेल्टा बहुत उपजाऊ हैं. The rice crop grows here well and produces very good. यहाँ चावल की फसल अच्छी होती है और उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है. That is why this region is called the rice bowl. इसीलिए इस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है. Many minerals are also found in the southern plateaus, such as iron, coal, mica, manganese and gold, etc. दक्षिणी पठारों में भी कई खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, अभ्रक, मैंगनीज और सोना आदि. The Kolar gold mines of Karnataka provide gold to different parts of the country. कर्नाटक की कोलार सोने की खदानें देश के विभिन्न हिस्सों को सोना उपलब्ध कराती हैं. यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हुआ. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें. वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद.